We saw in our previous topic that immunization or sort of variolation was done by taking something out of an abscess of a patient to another person. तो जो उसको arm to arm transfer कहा जेनर ने, ultimately that lead to vaccination. लेकिन in 1880, Louis Pasteur, who is famous for several of his achievements like germ theory और उसके बाद जो उसकी molecular biology and microbiology की understanding की तरफ contribution रही, he developed vaccines as well, and he developed vaccines for chicken cholera and anthrax using weakened bacteria. और एक्चुअली उस जमाने में अगर आप चिकन कॉलरा की तरफ उसकी प्रोग्रेस देखें तो इट वाज अ बिग अचीवमेंट, स्पेशली कि उसके बाद पोल्ट्री इंडस्ट्री स्टेब्लिश होना स्टार्ट हुई. अदरवाइज आप यानी कि अगर चिकन रेयर भी करते थे तो अल्टीमेटली अगर वो मर जाते थे तो इट वाज अ ह्यूज बर्डन टू द सोसाइटी. नाउ द रियल डिफरेंस between smallpox vaccination and chicken cholera in case of Louis Pasteur is that he generated this artificially. कैसे? Basically he used weakened bacteria. आपने बैक्टीरिया लिया और आप इन विट्रो उसको इतना वीक कर दें और जब आप उसको तब देंगे किसी और पेशेंट को तो अल्टीमेटली इट विल एक्ट एज अ वैक्सीन. So that was the real key point. You can see Louis Pasteur's picture here while he is in his laboratory. So it is very simple that if you are attacked by an active bacteria जो disease cause कर सकता है तो obviously आपको disease हो जाएगा. But if you somehow weaken that bacteria to the extent कि आप body में डालें और जो time frame में जो आपकी antibodies बने और उसके ऊपर attack करें तो अल्टीमेटली दैट विल न्यूट्रलाइज दैट पर्टिकुलर बग और आपको डिजीज नहीं होगा. Pasteur produced the first vaccine for rabies by growing the virus in rabbits and then weakening it by drying the affected nerve tissue. तो इस तरह उसने अल्टीमेटली एक वायरल मटेरियल लिया एंड द वैक्सीन ही टेस्टेड दैट वैक्सीन इन 50 dogs बिफोर इट्स फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल विच वाज अ ह्यूज अचीवमेंट. क्योंकि हम उस जमाने की बात कर रहे हैं जब हो सकता है कि आपको स्टेक पे बर्न भी कर दिया जाए, दैट यू आर नॉट अ साइंटिस्ट, यू आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ विच क्राफ्ट. He tried this vaccine for the first time on a 9-year-old person known as Joseph Meister. And after basically the boy was badly mauled by a rabid dog. तो आप लोगों ने कभी रेबीज सुना? उसके अंदर रेबीज में इस किस्म का डॉग होता है, उससे फोमिंग हो रही होती है. You know, if you ever see such a dog, just run away. Don't go to him and say like, you know, doggy, 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 because you might ultimately, he will definitely bite you. But this was the kid जो ultimately survive हुआ. तो इसमें क्या होता है basically कि if an animal which is affected by rabies, जिसमें डॉग भी आते हैं, कैट्स भी आती हैं, अगर वो आपको बाइट करे तो जो वायरस होता है वो आपकी बॉडी में एंटर हो जाता है एंड अल्टीमेटली इट मूव्स अप टू द पेरिफेरल nervous system and then it ascends to the spinal cord and ultimately आपको fatal encephalitis कराता है. यानी कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर कोई चीज एंटर हो गई अल्टीमेटली उसने इतनी ज्यादा इन्फेक्शन कॉज करनी है कि आपकी जो मेम्ब्रेन्स हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वो अल्टीमेटली इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं और उसके बाद बंदे का बचने का चांस थोड़ा ही रह जाता है. एंड वायरस एंटर salivary gland and other organs of the victim as well. So it's a huge achievement for those days कि ultimately we were able to cater for rabies as well. Maurice Hilleman was the most prolific of the developers of the vaccines in the 20th century and his measles vaccine has been preventing 1 million deaths every year. That's something for the humanity कि आप कोई ऐसा काम कर जाएं कि ultimately आपके मरने के बाद भी आज भी लोग उन डिजीजेस से कितने आराम से प्रिवेंट हो रहे हैं. He developed vaccines for 40 diseases. तो आपके पास several successful vaccines आई हैं 20th century में, जिसमें सबसे यानी कि जो cohort of vaccines हैं पाकिस्तान में भी ये यूज होता है. मसलन अगर आप लोगों में से जो वालिदैन है, जब भी आपका बच्चा पैदा होता है तो आप डॉक्टर को विजिट करें तो डॉक्टर आपको एक कार्ड देता है कि आपने ये सारी वैक्सीन अगले 2-3 सालों के अंदर लगवानी है और बाद में उनकी बूस्टर डोजेस भी लगवानी है. So same thing happens in Western world as well.
अगर बच्चा पैदा हो तो यूके में वो आपको एक रेड बुक देते हैं, एंड दैट रेड बुक बेसिकली लाइफ टाइम, जब तक आप एडल्ट नहीं हो जाते, आपका वो रिकॉर्ड रहता है जिसमें हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स कॉन्टिन्यूसली चेक करते रहते हैं कि आपको कौन कौन सी वैक्सीन लग गई हैं। और जो वैक्सीन उसको हॉट में आती हैं तो दोज कंपनीज मेकिंग दोज वैक्सीन आर वेरी इन अ ह्यूज एडवांटेज, क्योंकि अल्टीमेटली वो बहुत बल्क में परचेज होती हैं। तो डिप्थेरिया, मीजल, मम्स एंड रूबेला एमएमआर वैक्सीन इज अ वेरी फेमस वैक्सीन। लेकिन दिस इज स्टोरी इज नॉट ऑल गुड, क्योंकि आपके पास देर आर ऑलवेज पीपल हु आर स्टूपिड इन ऑल नेशनैलिटीज। इन अमेरिका you have people like, when we are recording this course at the moment it is 2016, and this is the year when America is going to elect its next president, and I was watching a debate, a Republican debate, और उसके कैंडिडेट्स क्योंकि उनका जो इलेक्टोरेट है वो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, तो दे वर डिस्कसिंग कि इफ वी कैन गेट रिड ऑफ वैक्सीन, कि हम बच्चों को वैक्सीनेशन ना दें क्योंकि वैक्सीन आर डेंजरस। दीज पीपल क्लेम कि वैक्सीन्स, क्योंकि आपके अपने बच्चे हैं तो हमारी चॉइस है हम बच्चों को वैक्सीन करें ना करें। इफ दे विल स्टार्ट डूइंग इट, ऑनेस्टली जो हम लोगों ने जो आप लोगों ने क्राइसिस देखा है कि ह्यूमन पॉपुलेशन वाइप आउट हो जाती, इट विल स्टार्ट हैपनिंग अगेन। दे बिलीव दैट वैक्सीन्स कैन कॉज ऑटिज्म, एंड अल्टीमेटली ऑल दीज मल्टीनेशनल्स आर गिविंग यू वैक्सीन्स बिकॉज दे जस्ट वांट टू सेल यू। तो ये प्रॉब्लम कहां से आता है? एक्चुअली मैंने सारे के सारे क्लेम्स को मैंने आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि समटाइम्स प्रॉब्लम्स नहीं आते। एक वैक्सीन्स की प्रेपरेशन में यू यूज अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक एडजुवेंट्स यूज करते हैं, आप इम्यून रिस्पॉन्स ज्यादा देना चाहते हैं, तो अल्टीमेटली, एंड देयर हैव बीन हिस्ट्री एज वेल कि किसी बच्चे को उसके किसी एक कंपोनेंट से एलर्जिक रिएक्शन था और ऑब्वियसली उस बेचारे को वैक्सीन लगी। पाकिस्तान में एक केस हुआ था कुछ अरसा पहले कि लोगों को उन्होंने वैक्सीन लगाई और वो 16 के 16 बच्चे बेचारे वो मर गए, क्योंकि जो वैक्सीन का स्ट्रेन था दैट वाज एक्चुअली इतना अच्छा अटेन्यूएटेड नहीं हुआ था, उस कंपनी ने सही अटेन्यूएटेड नहीं किया हुआ था। बट दैट डजंट मीन दैट वैक्सीन्स आर रॉन्ग, दैट मीन्स दैट वी नीड टू हैव मोर स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन, क्योंकि अगर हम लोगों ने इस डगर के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट हो गए कि हम लोगों ने वैक्सीन के खिलाफ चले जाएं, तो एक्चुअली हम लोग आज से 16वीं सदी या 17वीं सदी में जा रहे होंगे, जब आप पे ताउन की वबा फैलती थी और लोग, काफी सारे लोगों की इकट्ठे डेथ हो जाती थी। इन पाकिस्तान द बिगेस्ट क्राइसिस एट द मोमेंट इज पोलियो। देयर आर ओनली 3 कंट्रीज इन द वर्ल्ड जिसके अंदर पोलियो अभी भी मौजूद है, अदरवाइज हम लोग पोलियो को इरेडिकेट कर चुके होते। एंड देयर इज अ ह्यूज ड्राइव टू बेसिकली कर्ब पोलियो, और पोलियो की एडवांटेज ये है कि इसकी जो वैक्सीन है वो भी ओरल है, लेनी बहुत आसान है। दिस इज द मैप ऑफ पाकिस्तान बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इन 2014 वी हैव अराउंड 110 to 120 केसेस जो पाकिस्तान में है। If we want to get rid of scenes like this on our streets, we have to join together and ultimately we have to fight against polio. Especially जो हमारे टेररिस्ट हिट इलाके हैं, जो हमारी ट्राइबल बेल्ट है, उसमें एक बहुत ज्यादा एक्टिव कैंपेन है अगेंस्ट पोलियो। पोलियो वर्कर्स को मारा जाता है और अनफॉर्चुनेटली हमारा मीडिया और हमारे लोग इस चीज को ऑनर नहीं करते कि वो लोग कितने कर्ब से गुजर रहे हैं, कितनी मुश्किल से अल्टीमेटली वो लोगों को वैक्सीनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रॉम 200,000 to 0 इंडिया हैज डन इट। इन 2012 इंडिया ने, जो इतनी बाइफर्केटेड सोसाइटी है, इफ दे आर एबल टू करटेल पोलियो, आई थिंक वी शुड बी एबल टू करटेल पोलियो एज वेल। वी हैव टू सी दैट इन लास्ट फ्यू डेकेड्स या लास्ट सेंचुरी में हम कहां से कहां आ गए हैं, जब हम लोगों ने कॉलरा, एंथ्रेक्स और रेबीज और टेटनस से स्टार्ट किया और अल्टीमेटली येलो फीवर, पोलियो से होते होते नाउ वी आर एंटरिंग इनटू अ स्टेज जिसमें वी आर रेडी टू टेक प्रोस्टेट कैंसर वैक्सीन। एंड अल्टीमेटली आई थिंक इट्स ह्यूज, एंड इट्स नॉट ओनली दैट, अब हमारे पास जो आगे वाले चैलेंजेस हैं क्या है। लव दिस ग्राफ, क्योंकि इसमें यू कैन सी कि किन
डिजीज को हम लोगों ने टैकल कर लिया, लाइक टाइफॉइड, लाइक बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, आस्क योर पेरेंट्स कि जब आप जवान होते थे आपके कितने दोस्त गर्दन तोड़ बुखार से मर गए। आज आपको नहीं ऐसा कोई केस मिलता कि आप कहें कि यार उसको गर्दन तोड़ बुखार हुआ और वो मर गया। व्हेन आई वाज यंग, हम लोग छोटे होते सुनते होते थे कि वो फला हमसाए थे उनका बच्चा गर्दन तोड़ बुखार से मर गया। बट नाउ वी आर रीचिंग दी स्टेज जहां पर हम लोगों के पास ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं आ रहे, लेकिन वी स्टिल हैव चैलेंजेस। वी हैव HIV एज अ बिग चैलेंज, वी हैव हेपेटाइटिस C एज अ बिग चैलेंज, वी हैव cytomegalovirus, we have RSV, and we still have the biggest killer of them all, malaria. And then now we are reaching an era जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि हम डायबिटीज के खिलाफ वैक्सीनेशन ले आए, हम हे फीवर के खिलाफ वैक्सीनेशन ले आए, क्योंकि इट्स अ बिग प्रॉब्लम। जिन लोगों को आप लोग यानी कि देखते होंगे जिनको हे फीवर है, सुबह उठ के छींके मारने लगे तो आधा घंटा उनका छींके मारने पे जाता है। यू हैव मलेरिया वैक्सीन, लेकिन ये जो इसकी टाइम लाइन है दैट इज नॉट एक्यूरेट, दिस इज जस्ट अ प्रोजेक्शन। आई थिंक वी आर स्टिल 5 to 10 years अवे फ्रॉम रीचिंग दीज गोल्स। मसलन, हाउ कैन वी डिजाइन अ वैक्सीन अगेंस्ट अल्जाइमर्स व्हेन वी actually don't understand the molecular basis of the disease at the moment? So a simple fact check in the end कि we have a still a long mile to go, जिसमें कुछ diseases ऐसे हैं, मसलन एड्स, गोनोरिया एंड herpes simplex, जिसके अंदर अल्टीमेटली आपको ये प्रॉब्लम है कि अभी हमने उनके चीजें आइडेंटिफाई नहीं की। तो इफ यू आर अ स्टूडेंट जो अभी अल्टीमेटली रिसर्च में जाना चाहता है, वैक्सीन हैज ऑलवेज बीन अ हॉट एरिया, और जिन डिजीजेस की वैक्सीन अभी फाइंड की जा रही हैं, गो एंड ट्राई टू डू दैट।